Hello students, welcome to economic class. And today in this video, children, we are going to discuss the changes in production possibility curve. As you know, this is the video number 4. And after this video, children, one more video is there, and in that video, we will come to the end of chapter number 1. So here, as you can see that chapter 1 introduction. In the previous video I have discussed with you about production possibility curve, and in the previous video we also discussed about the resources. Resources are scarce, or we can say resources are limited, and we have unlimited demand. To fulfill the unlimited demand, we have to use the scarce resources in such a manner so that we can attain maximum satisfaction as a consumer and a maximum profit as a producer. Because as a consumer, always try to use the scarce resources to attain maximum satisfaction, and producer as a investment producer always try to produce such goods and services so that he can attain maximum profit, right? So the question is arise, what goods and commodities should be selected by the producer to production as a consumer for consumption? So in the previous video, as I told you that about the production possibility curve. Production possibility curve is a curve which shows various combination of production of two goods that can be produced with the given resources technology. So there is a combination. For example, there are two goods, good 1 and good 2, right? As a producer, I have selected to produce two goods. So production possibility curve tells us what will be the combination, right? In combination 1, I am not producing good 1. The production of good 1 is 0. The production of good 2 is 10 unit. And another combination may be 1 unit of good 1 and 9 unit of good 2. Another combination like that, 3 unit of good 1, 7 unit of good 4, right? Like that, not 7, 3 means 5, right? So these are the combinations 0, 10, 1, 9, 2, 8, 3, 5. So you can see here, whenever we are increasing the production of good 1, we have to decrease or we have to sacrifice the production of good 2, because the resources are scarce. With using the scarce resources, we cannot produce both the goods in equal amount, because resources are also not equally efficient. For example, if I am saying to a singer to play cricket, he will not be able to play cricket well because his skill is good for playing cricket. In the similar manner, if you want to ask a singer to if you ask to a cricketer to sing a song, so cricketer will not be able to play a sing song well because he is not so able. And in the similar manner, if you will ask a singer to play cricket, he will not be able to sing well. So we can say that resources are not equally efficient, right? And a labor may be able to produce rice. He will not be equally efficient to produce wheat because his capability or his skill and knowledge is good for production of rice, right? So what is labor? Labor is a resource. All human beings are also used as a resource. So this was the recap of previous chapter. In whatever manner we can represent the combination of production of two goods. This was the
recap of the previous chapter. So children, I hope you must have clear the concept of production possibility curve. This is not a very difficult, children. It is only for the explanation that in what amount the two goods can be produced whenever we are using our resources efficiently and using the efficient technology. So PPC tells us that we have to use scarce resources in such a manner whether we are using the scarce resources efficiently without any wasting, and we also getting maximum satisfaction. Next point which we are going to discuss, children, also associated with the production possibility curve. Because of that, in the beginning of this video I explained the concept of production possibility curve in your mind once again. So you can see as I have written change in PPC. So before explaining it, children, let me tell you, you can see x-axis, that is horizontal line, y-axis vertical line, the point of origin where horizontal line and vertical line are intersecting each other. So in the previous video you have seen that I have told you the different combination, right? So these are the combination of production of two goods. That so when we represent this combination of the graph, or we can say diagram, so we get a curve, right? This curve is called as a production possibility curve. This production possibility curve represent the possible combinations which can be produced with the given resources and given technology, right? Change in PPC. This is the initial PPC. What kind of change may be possible in the PPC? This production possibility curve can shift and rotate. There are two kind of changes in the production possibility curve. It can be shift. The shift may be this side or this side. From the initial PPC, this PPC can be shifted to the rightward, means this side, right, or left side. This is so shift towards left side is called as leftward shift, right? In the similar way, rotation. So shift means, children, shifting means changing the place. You are changing your place from one place to another place. And rotation means, children, you are just rotating like that. I will tell you, just wait. So children, in this video we are going to discuss change in PPC. So there are two kind of changes in PPC, shift and rotation. Shift also bifurcated in two parts, rightward shift and leftward shift. Rotation also is possible on two sides, along the x-axis and along the y-axis. I will tell you one by one each other. So let us discuss, children, first of all, shift in production possibility curve. So children, as I already told you that in production possibility curve, we represent the production different combination of production of two goods, right? So for production of two goods, we use two things: resources and technology, right? And this is your initial PPC, x-axis, y-axis, point of origin, and this is your original PPC, or we can say initial PPC. In this PPC, we are representing the possibility of production of two goods. So if there is a increase in the resources or decrease in the resources of production of two goods, okay, here we are using the resources
efficiently right. So see, this is the initial PPC. It means we have resources of rupees 100 lakh. We have available the 100 lakh rupees. If we are using the 100 lakh rupees, we can produce the goods and or two goods. The combination will lie on this PPC, right? But in case if resources are increasing, right? If resources are increasing or resources are if resources are increasing for the production of both the goods. For example, here resources are 100 lakh. If these resources are increasing, if you are including that resources are in money, and if you are increasing the resources like labor, so labor may be, for example, if we have 50 laborers, so if we are using all the 50 labor, so we can produce both the goods like that. हमारा जो पीपीसी है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, कि हम दोनों जो हमारे रिसोर्सेस अवेलेबल अगर हम पूरा यूज करते हैं तो हम यहाँ तक आ सकते हैं, इतने गुड्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जो इस पर लाई होंगे। लेकिन अगर हमारे रिसोर्सेस इंक्रीज हो गए तो क्या होगा कि ये जो हमारा इनिशियल पीपीसी है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, ठीक है, A dash B dash. Children, this is called as a rightward shift of rotation. कि when our resources are increasing for the production of all the goods, right? So we have to we can produce more of both the goods. ठीक है ना, कि जब हमारे पास 100 लाख रुपीस थे तो दोनों गुड्स का इतना प्रोडक्शन कर पा रहे थे, मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो उस पे आ रहे थे। लेकिन अब हमारे रिसोर्स इंक्रीज हो गए हैं तो अब हम दोनों गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो जो हमारा इनिशियल पीपीसी है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एंड इसका जस्ट अपोजिट है चिल्ड्रन, तो ये जो आप शिफ्ट देख रहे हैं इसे कहते हैं चिल्ड्रन राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी, राइटवर्ड शिफ्ट। अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाए कि हमारे जो रिसोर्सेस थे 100 लाख रुपीस, ठीक है, अब वो 50 हो गए हैं। जो हम रिसोर्सेस यूज कर रहे थे, इनिशियल रिसोर्सेस 100 लाख थे, 100 लाख रुपीस थे, लेकिन अब वो कम हो गए। तो उस जब हमारे रिसोर्सेस कम हो जाएंगे तो हमारा जो दोनों गुड्स का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, A डबल डैश और B डबल डैश। ये इनिशियल पीपीसी से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसे कहते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी। आई होप कि चिल्ड्रन ये क्लियर हो गया होगा। इन द सिमिलर वे चिल्ड्रन, इफ टेक्नोलॉजी आर अपग्रेडिंग और रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी आर डिग्रेडिंग और प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स, जो टेक्नोलॉजी हम यूज करके दोनों गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे इनिशियल में वो यहाँ पर आते, लेकिन अब हमारी टेक्नोलॉजी चिल्ड्रन क्या हो गई है कि अपग्रेड हो गई है, हम अच्छी टेक्नोलॉजी आए लाए हैं। चिल्ड्रन आप देखो कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अच्छी होती जाती है तो मिनिमम इनपुट से हम मैक्सिमम आउटपुट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी हम पहले यूज कर रहे थे दोनों कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इनिशियल था ये, लेकिन अब हमारी टेक्नोलॉजी जो है अपग्रेड हो गई है, हम उससे बेटर टेक्नोलॉजी लेकर आ गए हैं। तो अब हम उतनी ही रिसोर्सेज से ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो क्या होगा कि पीपीसी जो है इनिशियल पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा A डैश और B डैश की तरफ आप देख रहे हैं कि हम दोनों गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। लेकिन इसका अपोजिट हो जाए कि अगर हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी अभी हम यूज कर रहे थे, हमारी टेक्नोलॉजी उससे जो डिग्रेड हो जाए, उससे भी मतलब खराब क्वालिटी की टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए, तो क्या होगा कि हम दोनों गुड का प्रोडक्शन कम कर पाएंगे। तो जो हमारा इनिशियल पीपीसी है वो लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये देख रहे हैं आप, ये इनिशियल जो आपका पीपीसी था वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है। तो आई होप चिल्ड्रन ये क्लियर हो गया होगा।
अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, वो है रोटेशन। चलिए, रोटेशन आपने साइंस में स्टडी किया होगा कि रोटेशन का मतलब ये होगा कि एक फिक्स प्लेस पर, जैसे आपने ये पॉइंट फिक्स कर लिया और इसके अराउंड चारों तरफ आप मूव कर रहे हैं, तो ये फिक्स प्लेस है। तो रोटेशन का मतलब होता है कि एक फिक्स प्लेस पर रहो और उसके लेफ्ट या राइट आप मूवमेंट करते रहो। जैसे आपने देखा होगा कि वो पेंडुलम वाली जो घड़ियां आती थी पहले पुराने जमाने में, ये पेंडुलम ऐसे होता था, आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो ये यहाँ पर फिक्स है, यहाँ से ये इस तरफ और इस तरफ ये मूव करता रहता है, आपने देखा होगा। ये यहाँ से यहाँ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ गया, फिर ये वापस यहाँ गया, तो वन रोटेशन इसका कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पीपीसी में भी रोटेशन होता है। आपको मैं बताता हूँ ये रोटेशन कैसा होता है। तो पहले आप इनिशियल पीपीसी आप देख लो, ये हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। एंड दिस इज अवर इनिशियल पीपीसी, जिसको हम AB से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा इनिशियल पीपीसी है चिल्ड्रन। अब हम क्या करते हैं कि चिल्ड्रन शिफ्ट में तो हमने ये देखा कि दोनों गुड के प्रोडक्शन करने के लिए हमारे रिसोर्सेज या तो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, और या फिर हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है या डिग्रेड हो रही है। तो हमारा जो पीपीसी था, जब रिसोर्सेज इंक्रीज हुए तो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, रिसोर्सेज डिक्रीज हुए तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, ठीक। और अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई या अपग्रेड हुई, अच्छी टेक्नोलॉजी आई, तो दोनों गुड्स का प्रोडक्शन हम ज़्यादा कर पा रहे थे, तो हमारा पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। और हमारी टेक्नोलॉजी पहले से खराब आ गई, ठीक है, डिग्रेड हो गई, तो हम दोनों गुड का प्रोडक्शन कम कर पा रहे थे। यानी हमने उसमें दोनों गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, दोनों गुड्स के प्रोडक्शन के रिसोर्स इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, या फिर दोनों गुड्स के प्रोडक्शन करने की जो टेक्नोलॉजी थी वो तो अपग्रेड हुई या डिग्रेड हुई। तो जब दोनों गुड के प्रोडक्शन के लिए रिसोर्स में इंक्रीज या डिक्रीज या टेक्नोलॉजी इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो हमारा जो पीपीसी है वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। तो दोनों गुड को वहाँ पर इंक्लूड करते हैं। लेकिन रोटेशन के लिए देखो, रोटेशन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, तो इसमें रोटेशन होगा, इसे हम कहते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस रोटेशन, या फिर हमारा रोटेशन अलोंग द वाई एक्सिस, यानी ये अपनी जगह से लेफ्ट या राइट मूव करेगा। तो इसमें क्या होता है चिल्ड्रन, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी वन गुड, ठीक है, किसी एक गुड को प्रोडक्शन करने के जो रिसोर्सेज हमारे पास है, या तो वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। जैसे हम यहाँ पर गुड 1 को, यहाँ पर हम गुड ले लेते हैं गुड 2, यहाँ पर मैंने ले लिया गुड 1, ठीक है, यहाँ पर मैं गुड 1 को रिप्रेजेंट करूंगा। अब ऐसा होता है कि गुड 1 को प्रोड्यूस करने के जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज हो जाएं, ठीक है। गुड 1 को प्रोडक्शन करने के लिए जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे थे, जितने हमारे रिसोर्सेज थे, अब हमारे रिसोर्सेज उससे ज़्यादा हो गए, ठीक है। हमारे पास गुड 1 को प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज थे 100, लेकिन ये अब हो गए 100। तो जब हमने 100 रिसोर्स को यूज किया तो हम इतना गुड 1 का इतना प्रोडक्शन कर पा रहे थे। अब हमारे रिसोर्स इंक्रीज हो गए तो गुड 1 का प्रोडक्शन हम ज़्यादा कर पाएंगे, जबकि गुड 2 का प्रोडक्शन जितना था उतना ही रहेगा। तो गुड 1 का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारा पीपीसी है वो इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा अपने इनिशियल स्टेज से, ये आ जाएगा A B डैश, हम इसको कहते हैं। क्योंकि देखो ये राइट वर्ड रोटेट हो गया है, इसे कहते हैं राइट वर्ड रोटेशन, ठीक है। लेकिन अब ऐसा हो जाए कि गुड 1 के प्रोडक्शन करने के जो रिसोर्सेस हमारे पास वो कम हो जाए 100 से, अब वो हो गए हमारे पास 50। तो अब क्या होगा कि गुड 1 का प्रोडक्शन हम कर पाएंगे, जबकि गुड 2 का प्रोडक्शन एज इट इज रहेगा। तो क्या होगा कि जो हमारी पीपीसी है, ये गुड 1 का प्रोडक्शन कम कर पाएंगे, तो एक्स एक्सिस पर ये जो आपका पीपीसी है वो रोटेट हो जाएगा लेफ्टवर्ड की तरफ, लेफ्ट साइड। ये देखिए ये अपने इनिशियल स्टेज से लेफ्ट की तरफ रोटेट हो गए, इसे हम कहते हैं लेफ्टवर्ड रोटेशन, राइट। तो ये हो गया गुड 1 के प्रोड्यूस करने के रिसोर्स या टेक्नोलॉजी। चलिए यहाँ पर मैं सिर्फ मैंने रिसोर्स बोला है,
लेकिन हम यहाँ पर फिर से क्लियर कर देते हैं कि दोनों, या तो जो गुड 1 के प्रोडक्शन करने के रिसोर्सेस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं या हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए। गुड 1 को प्रोड्यूस करने की जो टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज हो जाए या रिसोर्स इंक्रीज हो जाए, तो गुड 1 का हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो ये राइट वर्ड रोटेट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि गुड 1 को प्रोड्यूस करने के जो हमारे पास रिसोर्स हैं और जो टेक्नोलॉजी है वो रिसोर्स कम हो जाए और टेक्नोलॉजी डिक्रीज हो जाए, तो हम गुड 1 का प्रोडक्शन कम कर पाएंगे, इसलिए हमारा जो इनिशियल पीपीसी है वो रोटेट हो जाएगा लेफ्ट वर्ड की तरफ। तो ये हो गया राइट वर्ड रोटेशन और ये हो गया लेफ्ट वर्ड रोटेशन। अब चिल्ड्रन, तो इसे हम चिल्ड्रन कहते हैं रोटेशन अलोंग एक्स एक्सिस, रोटेशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, देखा यू कैन सी हियर, ये थोड़ा इसका मैंने नाम लिखा ए डबल, तो इसका नाम हो गया ए बी डबल डैश। तो ये देखिए आप चिल्ड्रन, यहाँ पर आपका जो पीपीसी है इसका जो रोटेशन है वो एक्स एक्सिस पर हो रहा है, इसीलिए इसका नाम रोटेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो रोटेशन अलोंग एक्स एक्सिस में जो रोटेशन होता है या तो राइट वर्ड रोटेशन होगा या लेफ्ट वर्ड रोटेशन होगा, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ चिल्ड्रन लेट अस डिस्कस द रोटेशन अलोंग एक्स वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में रोटेशन कैसे होता है हम उसकी भी बात कर लेते हैं। So children, this is our initial PPC, x axis, y axis, point of origin, good 2, good 1, right? Initial PPC A B। चलिए, अब कुछ ऐसा केस होता है कि गुड 2 को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए। जो रिसोर्सेस हम यूज कर रहे थे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड 2, तो या तो हमारे रिसोर्स इंक्रीज हो जाए या फिर हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाए। इस केस में क्या होगा कि गुड 1 का प्रोडक्शन तो हम उतना ही कर पाएंगे जितना हम पहले कर पा रहे थे, बट द प्रोडक्शन ऑफ गुड 2 विल बी इंक्रीजेस, हमारे गुड 2 इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि गुड 2 को प्रोड्यूस करने के रिसोर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी, या तो रिसोर्स इंक्रीज हो या फिर हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो इनिशियल पीपीसी है वो लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम गुड 2 का ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा राइट वर्ड रोटेशन। और इन केस ऐसा हो जाता है कि गुड 2 के प्रोडक्शन करने के जो रिसोर्स हैं वो कम हो जाए या उनको प्रोडक्शन करने की जो टेक्नोलॉजी है वो डिग्रेड हो जाए, तो फिर हम इनका प्रोडक्शन कम कर पाएंगे। तो ये लेफ्ट वर्ड रोटेट हो जाएगा। तो ये हो गया ए डैश बी और ये हो जाएगा आपका ए डबल डैश बी। तो ये तो हो गया आपका राइट वर्ड रोटेशन, राइट वर्ड रोटेशन, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वर्ड रोटेशन, लेफ्ट वर्ड रोटेशन, ठीक है। तो राइट वर्ड रोटेशन का मतलब ये है कि हमारे रिसोर्स और टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई, तो हम गुड 2 का प्रोडक्शन ज्यादा कर पा रहे हैं, जबकि गुड 1 का उतना ही रहेगा। रिसोर्स और टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई या रिसोर्स कम हो गया, टेक्नोलॉजी कम हो गई, तो हम गुड 2 का प्रोडक्शन कम कर पाएंगे, गुड 1 का प्रोडक्शन एज इट इज ही रहेगा। तो चिल्ड्रन, दिस वाज द शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। आई होप कि आपका पीपीसी का शिफ्ट और रोटेशन का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।